Hello everyone, welcome to this video. I am Saksham Sharma, founder of Career Kunj and former HR and recruiter of TCS. So friends, a very big news for all the engineering students who are passing out in 2025 that the most awaited hiring for you, which is TCS NQT, has been launched off, and it's an off-campus hiring where any student of any college pursuing his engineering can apply to this, and it is one of the biggest hiring in the country, wherein you will get a chance to work in TCS, a top MNC company, and it's really a big opportunity because your course is coming to an end, or by 2-3 months you will be passing out your degree. So if you are not placed yet, then this is the chance for you to get a placement from company like TCS. And trust me, friends, I have been into TCS. I was an HR there. TCS is a company which will give you a very good career start. Okay, and this hiring has all the kinds of job offers, including Prime, Digital, and Ninja. And with Prime, you can get an offer of 11.5, and with Digital, it is around 7, and with Ninja, it will be around 3.36. And also it is something, this particular hiring is for all the branches of engineering. It is not just for CS and IT. So if you are a mechanical engineering student, or if you are electronics engineering student or civil engineering students, you can still apply to it. And the best part is that since it has three categories of hiring: Prime, Digital, and Ninja, so even if you don't know coding, you can still make it through it, and you can get the offer. Okay, and if you are good at coding, there are chances that you can clear Digital and Prime as well. ओके, सो वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एट द सेम टाइम वेरी इजी वन. दोस्तों, मैंने इसके बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं जब मैं टीसीएस में था एज एन एचआर, एंड आई हैव अ वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग कि इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, किन चीज़ों पे काम करना है, इंटरव्यूज में कौन से एरियाज पे आपको ध्यान देना है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विथ मी, वेर आई विल टेक एन मॉक इंटरव्यू. और उस आधे घंटे 45 मिनट के इंटरव्यू में मैं आपका पूरा मॉक इंटरव्यू लाइक एन एग्जैक्ट रिक्रूटर लूंगा, एंड आई विल गिव यू द फीडबैक कि आप कहाँ आप में कमी है और कौन से एरियाज आपके स्ट्रेंथ हैं, आपका रिज्यूमे कैसा है. सो दिस वुड गिव यू अ वेरी गुड फीडबैक कि आपको इसके लिए कैसे तैयारी करना है, एंड इट वुड बी an individual feedback coming directly from a recruiter who has taken interviews for this hiring. So friends, a very big opportunity, so don't take any chance to miss it. Okay, if you are interested, you can book an appointment with me. The link is given below in the description. You can set up an appointment, and I will take your mock interview. All right, so let's understand what is this hiring, and what are different eligibility criteria for this hiring, who can apply, who cannot apply, and what is the test pattern, and what are the different categories of offer which is being given from this hiring. So let's discuss this. So the page that you see here is the official TCS website, wherein it's their career page, wherein they have launched this hiring. Make your ambitions boundless, and I think it is like that only because it's a company which will give you ocean of opportunities. I understand for the people who get lower CTC from Ninja, यू मस्ट बी थिंकिंग यार ये बहुत कम सैलरी है, बट ऐसा नहीं है. आप अगर टीसीएस से आपका करियर स्टार्ट करते हो, तो आप ये मान के चलो आप आगे जाके बहुत अच्छे स्विच कर सकते हो, एंड विद इन जस्ट 2 years योर मार्केट वैल्यू बिकम 2.5 to 3 times. आई हैव सीन दिस, आई हैव बीन अ रिक्रूटर, आई हैव ऑफर्ड स्टूडेंट. So it's a very good opportunity. TCS is a very big brand name, and it gives you the best learning, on the latest projects and the latest technology. Okay, so moving on. So TCS Engineering Fresher hiring for the graduation batch of 2025. So this hiring is for the batch of 2025. तो अगर आप 2024 के पास आउट हैं या 2023 के हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं. प्लीज नोट, दे हैव अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. दिस इज फॉर द बैच ऑफ 2025.
जो कि इस साल पास आउट होने वाली है। ओके, एंड देन द रजिस्ट्रेशन इज ओपन। आई विल शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप उससे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज पे लैंड कर जाएंगे। एंड 23 मार्च संडे इज द लास्ट डेट, so don't wait for the last date uh, because if you because the return test center because the return test center is something जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट होते हैं। इनका टेस्ट, आपका रिटर्न टेस्ट टीसीएस आयोन सेंटर पे होगा। तो जितना जल्दी आप भरेंगे उतना, क्या बोलते हैं, मैं समझता हूँ आपको आपका प्रेफर्ड चॉइस सेंटर का मिलेगा। और ये बहुत बड़ी हायरिंग है, बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। तो देयर आर चांसेस कि यू माइट नॉट गेट द सेंटर ऑफ योर चॉइस, डोंट वेट। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एंड डेट दे रखा है 23 मार्च और टेस्ट डेट दे रखा है 15 मार्च। ये 15 मार्च नहीं होगा, 15 अप्रैल होगा। आई थिंक आई हैव टू राइट टू टीसीएस कि इसे करेक्ट करें, बिकॉज रजिस्ट्रेशन पहले खत्म होते हैं, टेस्ट डेट जो होता है वो बाद में होता है। एनीवेज, आई थिंक इट विल बी 15 अप्रैल। डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म टीसीएस। ओके, सो बेस्ट ऑन योर, आपके जो टेस्ट में जैसा आप परफॉर्म करोगे, आप 3 प्राइम, डिजिटल और निंजा के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर आपका टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर है तो आपको प्राइम के लिए कॉल आएगा। अगर आप मतलब मीडियोकर स्कोर है तो डिजिटल के लिए आएगा, और एकदम बेसिक स्कोर है तो आपको निंजा के लिए कॉल आएगा। बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग आना ही चाहिए। कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आपको निंजा के लिए कॉल आ सकता है। आप निंजा के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और इसमें एक कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको कॉल आ गया मतलब आपको, क्या बोलते हैं, मिलना ही है प्राइम का ऑफर या डिजिटल का ऑफर। आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो वो पैनल्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ऑफर देना है। ठीक है, देन अभी देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन से कोर्सेस एलिजिबल हैं इसमें। तो सबसे पहले है आपका बीटेक बी। ओके, देन इसमें ये मास्टर्स के लिए भी है, एम टेक एम ई स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों के पैकेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, स्पेशली प्राइम की बात करें तो बी के लिए इट इज़ 9 ओनली, 9 LPA, वेर एज एम ई एम टेक के लिए इट इज़ 11.5। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एम सी ए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड एम एस सी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत भी एलिजिबल है। और जितने भी मास्टर्स डिग्री वाले बच्चे हैं उनका पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आप पीजी कोर्स के हैं और बाकी इंजीनियरिंग सिर्फ बीई बीटेक यूजी कोर्स होता है, तो उसमें आपको स्लाइड डिफरेंस दिखेगा। सैलरी एग्जैक्टली क्या है वो भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, नीचे दे रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है और आपको रजिस्टर करना है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं इसको भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। मेरे पास पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट के साथ ऑलरेडी करा हुआ है। आई विल टेक यू वन आफ्टर अनदर कि आपको क्या करना है। बहुत ध्यान रखना इसमें, क्योंकि आपको इसमें आईटी सिलेक्ट करना है। व्हेन यू रजिस्टर ऑन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, आपको बीपीएस नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपने बीपीएस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। स्टे टिल एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रखें, आपकी मार्कशीट्स रेडी रखें, आपके और कोई सर्टिफिकेट्स है सब रेडी रखें, बिकॉज इफ़ यू गेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट यू विल गेट ए कॉल फॉर द इंटरव्यू। वहाँ पे इंटरव्यू देने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो इसमें क्या है, जैसे कि एलिजिबिलिटी को अगर डिटेल में देखें तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको सिर्फ 2025 के पास आउट बच्चे ही अलाउड हैं। तो इसका ध्यान रखें। और 25 के मतलब जो नॉर्मली 25 के हैं, ऐसा नहीं कि आप 24 के थे और आपको बैकलॉग लगा या 80 आया तो एक्सटेंड हो के आप 25 में पास आउट हो रहे हैं। नो, प्योर 25 पास आउट बैच। ठीक है, उसके बाद आपके जो एकेडमिक परसेंट होने चाहिए, ये आपके 60% और इक्विवेलेंट, मतलब 60% या 6 CGPA से ऊपर होना चाहिए। 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10th में आपके 59 थे, बाकी सब में 60 के ऊपर है, नहीं, ये लोग कंसिडर बिल्कुल नहीं करते हैं। और दिस इज लाइक लकीर की फकीर, ये 5.59.999 भी होगा तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। बिल्कुल ट्राई भी मत करना, ये मत सोचना कि नहीं यार 59.99 है तो मैं जाके अप्लाई कर लूंगा, इंटरव्यू के दिन कन्विंस कर लूंगा, नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज इंश्योर कि आपके 60% और इक्विवेलेंट मतलब 6 CGPA एंड अबो हैं 10th 12th डिप्लोमा
अगर ग्रेजुएशन है पूरा नहीं हुआ है तो करंट सीजीपी आपका 6 एंड अबव होना चाहिए, और सिमिलरली इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरा, आपका कोई भी नो पेंडिंग बैकलॉग, आपका कोई भी बैकलॉग या एटी केटी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग था तो उसका क्लियर किया हुआ सर्टिफिकेट आप रेडी करके रखें, क्योंकि अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो फिर वो लोग आपको अगेन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मना करें। एक्सटेंडेड एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड एजुकेशन मतलब होता है कि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो कोर्स है, जैसे कि इंजीनियरिंग है 4 साल का होता है, तो आपने 2021 में चालू किया होगा तो 2025 में खत्म होना चाहिए। तो अगर आपको एटी केटी आया मानो लास्ट सेम में या लास्ट ईयर में, तो क्या होगा, वो 2025 में खत्म नहीं होगा, वो 4 साल में खत्म नहीं होगा, वो 4.5 साल में खत्म होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एजुकेशन। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं चलता है। आपको ये 4 साल की डिग्री थी तो आपको 4 साल में ही खत्म करनी है वो। और सिमिलरली जो अगर आपको 10th के बाद 12th 2 साल में देना चाहिए, अगर आपने 2 साल में नहीं दिया है, आपने 3 साल में दिया है, तो भी क्या बोलते हैं, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब गैप्स की बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे ड्रॉप लेते हैं आफ्टर देयर 12th फॉर जेई प्रिपरेशन, तो गैप्स होता है। तो 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 साल से कम का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी क्या बोलते हैं एक्स चलेगा। और गैप में टेंथ और ट्वेल्थ के बीच में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखो इसका। ओके। और कोर्स टाइप आपका फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर, और ये पूरा 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए एलिजिबल है। तो प्योर फुल टाइम कोर्सेज होने चाहिए, डिस्टेंस का नहीं चलेगा, पार्ट टाइम का नहीं चलेगा, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज नहीं चलेंगे। एक यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों ने उनका 10th 12th ओपन स्कूलिंग से किया है, जिसको नायोस बोलते हैं, वो ज़रूर एलिजिबल होते हैं। तो इफ़ यू हैव डन इट फ्रॉम ओपन स्कूलिंग, यू आर एलिजिबल। बहुत बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हुए नायोस से एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ चल जाएगा, लेकिन नायोस को छोड़ के तो नहीं चलेगा। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो 2 साल से ज़्यादा का क्या बोलते हैं नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो, मतलब चांसेस हैं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद में 1-2 साल काम किया हो, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हो, तो 2 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपका तो आप एक्सपीरियंस हायरिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। जबकि ये फ्रेशर्स हायरिंग है ना। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2 इयर्स, और ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ भी इरेलेवेंट काम करते थे। रेलेवेंट मतलब कि आईटी कंपनी के हिसाब से वो रेलेवेंट होना चाहिए। एज, आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। मोस्टली बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आता है। हायरिंग कैटेगरी सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, प्राइम। प्राइम में आपको, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको 9 LPA का पैकेज मिलेगा। अगर आप मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप एम टेक एमएससी या एमसीए कर रहे हैं तो आपको 11.5 तक का भी पैकेज मिलेगा। और आपको इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलेगा। आपकी मैपिंग वैसे ही होती है टीसीएस ज्वाइन करने के बाद में भी। और सिंस वो आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो दे विल पुट यू इनटू सम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपकी जो स्किल सेट है, टैलेंट का यूज हो। डिजिटल में आपको 7 LPA का ऑफर मिलेगा। अगर आप पीजी कोर्स के हैं तो आपको 7.3 को मिलेगा। इसमें भी मतलब डिजिटल में भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैप किया जाता है। ठीक है। एंड निंजा इज एज यूजुअल, इट इज 3.36 फॉर यूजी, एंड पीजी के लिए 3.53 है। और ऐसा कोई मतलब डिमोटिवेट होने की बात नहीं है कि अगर आपको निंजा नहीं मिलता है तो, क्योंकि आप टीसीएस ज्वाइन करने के बाद भी टीसीएस के अंदर कुछ इंटरनल टेस्ट होते हैं, जिसको ये एलिवेट प्रोग्राम बोलते हैं। तो आप इंटरनल टेस्ट देके भी अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हो निंजा से डिजिटल। तो अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो घुस जाओ। ठीक है। ये मतलब आप आगे भी, आपके पास ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है कि निंजा में बहुत ही मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट मिलते हैं। ये सब यहाँ पे कहने की बातें हैं। एक बार आप कंपनी में घुस गए, ठीक है, तो फिर मतलब आपके चेहरे पर टैग तो नहीं लगा है ना कि आप डिजिटल के हो या प्राइम के हो या निंजा के। ठीक है। अगर आप में कैपेबिलिटी है और प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है और आप कर सकते हो तो आप भी करोगे। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा ना सोचें कि आपको बहुत ही बकवास काम मिलेगा। नो, नॉट एट ऑल। ओके। टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट कैसा होने वाला है आपका?
तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है एडवांस। फाउंडेशन सिंपल होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछते हैं, वर्बल एबिलिटी जहाँ पे आपसे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका एक होता है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी होता है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है, या आपने वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम्स दिए होंगे, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इजी, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, एडवांस सेक्शन में थोड़ा सा यही जो टॉपिक्स होते हैं इनके एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोडिंग का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है उसमें। तो कोडिंग में उसमें 90 मार्क्स की होती है। तो बेसिकली आपके एडवांस सेक्शन का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको प्राइम मिलेगा या डिजिटल मिलेगा। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन क्लियर करते हो तो आपको निंजा का ऑफर आना तो श्योर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपने फाउंडेशन में अगर बहुत अच्छा किया है तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि देखा जाता है कितने एप्लीकेंट्स और कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी संभावना है कि अगर आपने बहुत अच्छा फाउंडेशन में किया है तो भी आपको क्या बोलते हैं डिजिटल के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, सो डोंट थिंक कि आप कोडिंग में अच्छे नहीं हैं। वैसे तो कोडिंग बहुत डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, जबरन लोगों ने इसको डिफिकल्ट सोच रखा है। आप इजीली एक हफ्ते में कोडिंग सीख सकते हो, बट ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो भी आप इसमें अप्लाई करें, और यू विल स्टिल गेट अ कॉल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं जो कि बच्चों की मतलब बच्चे पूछते हैं। तो एक तो ये याद रखना कि बीपीएस और आईटी में जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको आईटी वाला ही सिलेक्शन करना है। अभी देख लेते हैं वो क्या है। ठीक है, टेस्ट आपका इन सेंटर पे होगा, वर्चुअल नहीं होगा। ठीक है, और जिस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका नाम है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। तो अगर वो लॉक हो जाएगा तो क्या करना है उसके बारे में ये दे रखा है। तो 4 घंटे के लिए लॉक होगा, फिर यू विल गेट ए चांस अगेन, तो घबराए नहीं, दैट्स ओके। बहुत टाइम है, 23 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीना है आपके पास में। ठीक है, बट यस जल्दी करें। ओके, बट एनजाइटी में ना है। अप्लाई फॉर द ड्राइव ऑप्शन आपका आना चाहिए लास्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद। जब तक ये नहीं आएगा ये मान के चलो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आईडी बना दी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, नहीं, जब तक अप्लाई फॉर ड्राइव आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तब तक फॉर्म भरा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत बार क्या होता है फॉर्म भरने के बाद में ऑप्शन नहीं आता, फिर लॉग आउट करके वापस चेक करना होता है। ठीक है, अगर मान लो आपने ऑलरेडी गलती से बीपीएस में भर दिया है या पहले से भर दिया था, तो यहाँ इन लोगों को लिख देना टीसीएस बीपीएस सपोर्ट। ठीक है, कि आपको आपकी आईडी डिलीट करें ताकि फिर आप आईटी में फिर से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको अप्लाई फॉर द ड्राइव ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आप 25 के पास आउट नहीं हो तो नहीं आएगा। ठीक है, या आपका 60 से ज़्यादा परसेंट नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेना इसको, मतलब सही डिटेल्स भरना, बहुत बार डिटेल्स सही नहीं होती है, उसकी वजह से भी अप्लाई फॉर द ड्राइव बटन नहीं आता है। ठीक है, आपकी अगर पहले से आईडी है तो दूसरी नहीं बनानी है, क्योंकि आपकी आईडी आधार कार्ड से लिंक होती है। तो आप दूसरी नहीं बना पाओगे, उसी को अपडेट करो। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपको फोटो वोटो क्या बोलते हैं 200 के बी से कम का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अब पढ़ के अप्लाई करना, क्योंकि मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि हम लोग हर छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, जब लेते थे टीसीएस में, तो हर छोटी चीज़ मैटर करती है कि मतलब उसका प्रोफाइल जो उसका सीवी में फोटो है वो कैसा है। ठीक है, बहुत लोग अपने कैजुअल फोटोज लगा देते हैं, इंस्टाग्राम वाले फोटोज लगा देते हैं, तो इससे प्रोफेशनलिज्म क्या बोलते हैं आपका मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो प्लीज टेक अ प्रॉपर फोटो इन वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड में लोगे तो वाइट शर्ट मत पहनना, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग पहनना ताकि वो इजीली दिखे। और एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, अगर आपको कुछ भी डाउट है, बुक एन अपॉइंटमेंट विथ मी, मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा, एंड आई विल गिव यू अ डिटेल फीडबैक कि आप में कहाँ कमी है, आपका रिज्यूमे कैसा है, आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ये, मतलब आपके लिए लास्ट चांस है एक बहुत बड़ी कंपनी में सेलेक्ट होने का। तो कोई भी कसर ना छोड़ें, बिल्कुल आप इसके लिए अपना बेस्ट दें। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और टीसीएस में बहुत ज़्यादा नंबर्स में हायरिंग होती है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। अब इसमें यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या हम उसे एडिट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सारी चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें ही आप एडिट कर सकते हो जो कि यहाँ पे दे रखी है ना, जैसे कि फुल टाइम पार्ट टाइम
कोर्स है। तो अगर ये आप एडिट नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ लिखना होगा, ये आपकी प्रोफाइल डिलीट कर देंगे, फिर आपको नई बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है तो यहाँ आप कर देना। कुछ चीज़ें जैसे कि मतलब आपके परसेंटेज वगैरह जो होते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपका नाम वगैरह भी आप ध्यान से भरना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप शांति से भरें, ठीक है, बिकॉज कुछ भी गलती हो गई, आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो आपने डिटेल्स भरी है वही उसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो वाई टू टेक सच रिस्क। ठीक है। कब आएगा आपका रिजल्ट? बिल्कुल बहुत जल्दी। आप जैसे ही टेस्ट देंगे आपको ये मतलब आई थिंक 2-3 हफ्ते में कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल क्लोज हो रहा है। आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे अप्रैल में, तो और जून जुलाई से हायरिंग जॉइनिंग चालू हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको कॉल आएगा। ओके। और कुछ भी आपको क्वेरीज हो, यहाँ पे इन्होंने इनके नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, रिप्लाई आने में टाइम लगता है। ये बहुत बच्चों की कंप्लेन होती है रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो वेट एंड इट विल कम। ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा डिटेल। आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई है। अब एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे वो ले जाएगा। एंड देन हम लोग ये देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, लैंड करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरनी है। देखो, ये पूरा मतलब ब्रीफ में बता रहा है कि आपको क्या क्या स्टेप करनी है। एक तो आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करना ही क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन करना नहीं हो जाता है। बहुत बच्चे लॉगिन करके छोड़ देते हैं कि भाई हो गया, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है, उसके बाद पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या पूछेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, आपके एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल पूछेंगे, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो रहती हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म का आप रिव्यू करते हो कि हाँ जो भरा है आपने बराबर है ना, फिर सबमिट करते हो, फिर अप्लाई फॉर ड्राइव आता है। तो लास्ट तक आपको रहना है, ठीक है। तो लॉगिन करिए, ठीक है। लॉगिन करेंगे आप, तो लॉगिन करने के लिए ये उसका होम पेज है, जहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का बटन होगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीपीएस सिलेक्ट नहीं करना है, आपको आईटी सिलेक्ट करना है। प्लीज प्लीज ध्यान रखें, ये वाला बीपीएस के लिए बनाया गया वो है, बीपीएस हायरिंग के लिए। तो इस पे इसको ना देखिए आप, आपको आईटी सिलेक्ट करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो मतलब आप फंस जाएंगे, और फिर आपका अप्लाई फॉर ड्राइव बटन नहीं आएगा। प्लीज प्लीज फिल दी आईटी नॉट बीपीएस। ओके, देन रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है। ईमेल आईडी आपका डालिए, आप ऐसा ईमेल आईडी डालिए जो आप चेक करते हो जो प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मतलब आपका उसमें नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पेट नेम पे बना हो रिंकू पिंकू चिंटू। चूज अ प्रॉपर प्रोफेशनल नेम सो दैट आगे भी उस पर सारा कम्युनिकेशन होगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करें आपका। आधार नंबर डालें। देखो, आप आधार नंबर डाल रहे हो मतलब आप एक से ज़्यादा आईडी नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर आपने पहले से आईडी बना ली है तो फिर उसी को आपको यूज़ करना, ठीक है। ये सब सही भरना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, क्योंकि बहुत बाद में चेंज नहीं होती है, परेशान होंगे आप, ठीक है। और नाम वगैरह भी आपका प्रॉपर भरना। मिडिल नेम का ध्यान रखना, बहुत लोग के बीच में कुमार सिंह होता है। आपका जो नाम होना चाहिए वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, जो आपकी मार्कशीट पे लिखा है। ऐसा नहीं कि भाई आप फर्स्ट और लास्ट नेम लिख रहे हैं लेकिन आपकी मार्कशीट में मिडिल नेम भी है। तो जो आपकी मार्कशीट में है वही आपका ऑफिशियल नाम है। तो ध्यान रखें, छोटी चीज़ है बट बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके। कॉलेज का नाम भरें, क्वालिफिकेशन भरें, ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग भरें, कॉमन चीज़ें हैं। टीसीएस ऑफिस कौन सा है आपके घर से पास वो आप चूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वही आपका रिक्रूटमेंट सेंटर भी हो। मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम तो फिर आपको शायद वहीं पे इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। ये रहा क्या बोलते हैं आपका पासवर्ड सेटिंग। छोटी चीज़ें हैं, आप ये तो इजीली कर लेंगे बट ध्यान से करें, ठीक है। इसका कैंडिडेट लॉगिन करना, एक बार बन गया, आप रजिस्टर कर लिया तो आईडी आ जाएगा आपका। आईडी आ जाएगा तो फिर लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म से फिर वो पूछेगा चीज़ें, तो ये फिल करिएगा, बेसिक चीज़ें। एड्रेस हो गया आपका, है ना। अकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, ध्यान से भरिए। परसेंटेज आप ध्यान से डालिए, क्योंकि
सिस्टम से ऑटोमेटिकली उठाएगा 60 क्या वो है कि नहीं, अगर कम है तो फिर आपको ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स पूछेगा वो आपसे, ग्रेजुएशन, 12th 10th, पोस्ट ग्रेजुएशन, और कोई आपने कोर्स किया है तो वर्क एक्सपीरियंस ध्यान से पढ़े। वर्क एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं दिखा, वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप, इंटर्नशिप क्या बोलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है, मेंशन जरूर कर देना, बट इट इज़ नॉट ए वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस वो होता है जहाँ प्रॉपर आप एम्प्लॉय थे और आपको सैलरी मिलती थी, तो इंटर्नशिप इज नॉट इन वर्क एक्सपीरियंस, ध्यान रखें इसका। ठीक है, और इसको आप ध्यान से करें। 10th 12th, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो कोर्स का अब आपको याद तो है नहीं कब चालू हुआ था, तो 1 जुलाई से आप चालू कर दीजिए, 1 जुलाई 2021, और ख़त्म कर दीजिए 30 जून, या 1 जून से आप चालू कर दीजिए 30 मई को ख़त्म कर दीजिए, मतलब 12 महीने का पीरियड ख़त्म करना है। तो आप रैंडमली भी डाल सकते हैं, ऐसा एग्जैक्टली डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वही आपकी एकेडमिक डिटेल्स चल रही हैं, ध्यान से भरते जाइए। ठीक है, और ये आपका एम्प्लॉयर, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो डॉक्यूमेंट्स जिसके हों उसी का वर्क एक्सपीरियंस मैटर करेगा। अगर आपने काम किया है और आप बिना इन्फॉर्म फॉर्मली इन्फॉर्म करे आप छोड़ दी थी आपने कंपनी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। जिनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो वही एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, ध्यान रखें। ठीक है, अम, ठीक है, ये भैया यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वो कि आपका कोई गैप है, यहाँ से गैप काउंट होगा। यस लिखोगे तो पूछेगा कितने साल का है, 24 महीने से कम का होना चाहिए, 25 महीने हैं तो राउंड ऑफ करके 24 कर देना, क्योंकि सिस्टम रिजेक्ट ना कर दे। एक आध महीना कंसिडर हो जाता है, 2 महीने भी चल जाते हैं। ठीक है, तो 24 कर देना उसको आप। और कोई बैकलॉग है तो अगर यस तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर नो तो ठीक है, अगर पहले था अभी नहीं है तो फिर नो करके उसका प्रूफ साथ में रखना। ठीक है, ओके, सो ये डिटेल्स आप ध्यान से भरें। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद फिर कुछ और डिटेल्स हैं, पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, बाद में आप अप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि पासपोर्ट लगता है आप एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, लैंग्वेजेस नोन, जो भी आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बट फिल इट, ये कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे डालने होते हैं आपको, तो एक रेफरेंस आपका टीपीओ होना चाहिए, दूसरा एक ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कोई दूसरी कंपनी में काम करने वाला पर्सन भी हो सकता है वो, या आपका कोई और दूसरा फैकल्टी हो सकता है। यूजली बच्चे एक टीपीओ को डालते हैं और एक एचओडी या कोई ऐसे फैकल्टी को डालते हैं जो कि उनके उनको जानता है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है, इसको आप भर दें, अपने दोस्तों का ना डालें। ठीक है, ये जो डिटेल्स हैं आपकी अचीवमेंट्स, तो आप डाल देना, कोई भी आपका अचीवमेंट हो, आप कहीं पे फर्स्ट वगैरह आए हो या कुछ आपको और कोई रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, ओके, ये आपको डिटेल्स में आप भर देना, इसमें ज़्यादा डीप में ना जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ बाद में होता है, तो जस्ट फिल इट। ओके, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है, यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेना कि सब बराबर है कि नहीं। ठीक है, और जैसे आप ये फाइनल पेज है कि हाँ भाई सब सही है, आई एग्री करोगे तो आपको मतलब ये भर चुका है। अब अपना स्टेटस देख लेना है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके मतलब रख लेना, क्योंकि वो भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना होता है इंटरव्यू में। और आपको अपना स्टेटस देखना, स्टेटस जो है आपका रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे, उसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइव आना चाहिए, अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आया है। हाँ, यहाँ पे देखो, ट्रैक माई एप्लीकेशन है, ट्रैक माई एप्लीकेशन पे आपका एप्लीकेशन अभी रिसीव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है वो ये शो कर रहा है। इसके बाद आपको मतलब एक पॉपअप आएगा, जब आप क्या बोलते हैं यहाँ पे आएंगे तो, कि अप्लाई फॉर द ड्राइव, वुड यू लाइक टू अप्लाई, यहाँ पे आपको यस करना है, तभी जाके आपका क्या बोलते हैं ऑप्शन आएगा पे, तो नियरेस्ट टेस्ट सेंटर भरना। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर द ड्राइव, आपका जब अप्लाई होगा तो जो आप सेंटर भरने के बाद में, बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ भी चूज़ कर लेना। ठीक है, और फिर आप प्रेफर्ड लोकेशन बताना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपकी कौन सी प्रेफर्ड लोकेशन है, यूजली तो मिल जाती है बट बहुत बार नहीं भी मिलती है, बट यस, देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि टीसीएस के बहुत सारे ऑफिसेस हैं। ठीक है,
अब यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, जब ये मैसेज आएगा तब आप शांति मानिएगा कि हाँ भाई हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल। ठीक है, एक बार फिर से आके स्टेटस में एप्लीकेशन देख लेना कि आपका जो स्टेटस है वो अप्लाइड फॉर द ड्राइव है, अप्लाइड फॉर द ड्राइव नहीं है तो मतलब नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्या होगा, आपने पूरी प्रोसेस कर दी, फिर क्या है, फिर आप मतलब आपको नहीं दिखता है, तो क्या करना, लॉग आउट करना, फिर लॉग इन करना, फिर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये ट्राई करना, नहीं हो रहा है फिर भी तो आपको जो मेल आईडी हाँ यहाँ दिखाए थे आप इसमें डाल देना। ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे, हेल्पलाइन ईमेल आईडी दे रखे, यू राइट इट टू हियर। ओके, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। और जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, आप एक मॉक इंटरव्यू मेरे साथ बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा फीडबैक दूंगा कि व्हाट इज योर करंट स्टेटस और आपको किन एरियाज में काम करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि मेरे साथ इंटरव्यू करने के बाद आपके मतलब प्राइम और डिजिटल के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हैव सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड रिक्रूटर से फीडबैक लेते हैं तो जो मिस्टेक आप इंटरव्यू में करेंगे वो पहले ही आपको समझ में आ जाएगी, एंड देन यू कैन get a better offer compared to what you get after doing a mistake. So thank you so much, by best wishes। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे काफ़ी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा, मैं करियर्स पे भी काफ़ी सारी टॉक्स बनाता हूँ, तो आप हमारे कुछ पॉडकास्ट भी हैं, करियर टॉक्स विद सक्षम, आप वो भी देख सकते हैं। मैं कौन हूँ ये और अच्छे से जानने के लिए आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक दे रखा है मैंने, so you can go and check my LinkedIn profile for a sound understanding of who am I. So thank you so much. Wish you all the best, guys. Last chance है, पूरा दम लगाइए और select हुई and एक बहुत अच्छे करियर का शुरुआत करिए। Thank you so much.